No, no, it's fine. So, good evening, everyone. This is Nikhil from IBD India, and today we are sitting with Nivedita Paliwal. She recently turned 18. She is living with ulcerative colitis. She is from Udaipur, and she is going to attend college. So the purpose of today's meeting is to understand what and how the experience of IBD has changed, uh, you know, from 10 years or 5 years ago, and what do young people these days living with IBD or children or teenagers like Nivedita living with IBD think of the disease? How do they deal with the disease? What are their experiences, and what can we learn from them? And as an organization and as a community, what do we need to do to better support these people? Um, the entire organization, IBD India, was started so that we could make things better for people who would be diagnosed later than us. And in these times, more and more young people, more and more children are being diagnosed with IBD. So we definitely have some kind of responsibility to change some of the things so that when kids and teenagers are diagnosed with IBD in the future, they don't have to go through all of those same things that many of us have been through. Okay. And Nivedita actually runs a YouTube channel. She has around like 1100 subscribers, and where she openly shares about her journey with ulcerative colitis, what kind of food she eats, and that is the thing which motivated us to kind of invite her for a discussion, because at such an early age she is already talking about IBD and ulcerative colitis on a public platform, and not just talking about it, she is actually helping others as well. So yeah, Nivedita, good evening, how are you today? Hi, I'm good. Okay. So, just to begin with, why don't you tell us about your story of the IBD diagnosis? Like what were the initial symptoms that you faced, and how did you get diagnosed, and how long was the process, and what all challenges or what all problems did you face? And you can speak Okay. in both English and Hindi, it's fine. Okay. Yeah, okay. So I was in 10th when it all started. Like um मैं मसूरी ट्रिप पे गई थी स्कूल से, वहां से आने के बाद 1 मंथ हुआ था एंड आई सी की मोशंस के साथ ब्लीडिंग आ रही है। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। मतलब अगर कोई भी फर्स्ट में देखेगा तो जिसे नहीं पता है, नो वन नोज अबाउट यूसी और आईबीडी, जिसने कभी सुना भी नहीं है, एवरी वन थिंक दैट दिस माइट बी पाइल्स। तो एक बार मुझे भी यही लगा था, मैं घर पे बताने से भी डर रही थी कि क्या होगा, क्या रीजन होगा। मैंने मम्मी और दीदी को बताया। तो सबसे पहले हम लोकल डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और उससे जो वो ब्लीडिंग थी, वो मेडिसिन लेने के बाद वो ब्लीडिंग बंद हो गई। लेकिन फिर उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद ही मेरे लूज मोशन स्टार्ट हो गए और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता था उस टाइम। बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती थी। तो उस टाइम फिर मुझे डर लगने लग गया कि मैं स्कूल कैसे जा सकती हूँ, मेरे पेट में दर्द होता है और मैं कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाती, तो मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। मेरे प्री बोर्ड्स का टाइम था, तो स्कूल पापा ने बात करी स्कूल में, और मैं 1 से 2 महीने स्कूल नहीं गई। फर्स्ट वाले प्री बोर्ड्स मैंने मिस कर दिए। सेकंड प्री बोर्ड्स हुए तब तक हम लोग यहाँ पे, ऐसा होता था कि मैं मेडिसिन लेती थी, ठीक हो जाती थी, सिम्टम्स इम्प्रूव होते थे। वापस से जैसे ही कुछ हैवी फूड खाया, स्पाइसी खाया, एंड वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसा ही चलता रहा यहाँ पे। उदयपुर में लोकल जितने भी हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स, हमने उन सबसे मेडिसिन ले ली थी, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था। हर बार यही होता था, मैं बाहर का खाती एंड सिम्टम्स वापस से आ जाते, वही लूज मोशन, फ्रीक्वेंसी, पेट में दर्द। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया और मुझे बस यही लग रहा था कि लोकल मेडिसिन लेके कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बट कोई इफेक्ट नहीं था। लास्टली हमने फिर जब सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स ट्राई कर लिए थे, तो पतंजलि आयुर्वेदा ट्राई किया। उससे मेरे सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगे थे, लेकिन वापस से मैंने कुछ स्पाइसी फूड खा लिया
और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर फाइनली मेरी जो बड़ी दीदी है वो बेंगलोर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें लाइक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। फिर हम उदयपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने सारे सिम्टम्स बताए, तो उन्होंने बताया कि ये सब हो सकता है। फिर उन्होंने कॉलोनोस्कोपी स्केड्यूल करी, और कॉलोनोस्कोपी के पास जब बायोप्सी आई तब पता चला कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ओके, एंड ये सब पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? मुझे पूरा 1 साल लग गया था क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। सबको यही लग रहा था कि मेरा जो मसूरी ट्रिप था वहां पे मैंने कुछ खा लिया होगा, तो उससे फूड पॉइजनिंग या फिर नॉर्मल इंडाइजेशन वगैरह हो गया होगा। ओके, एंड जब डॉक्टर ने आपको बताया, व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड यू कि दिस कुड बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन या आपका रिएक्शन कैसा था? किसी को पता था कि ये क्या है? आसपास किसी ने सुना हो? एंड हाउ डिड नहीं, व्हाट वर द इनिशियल रिएक्शंस ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली? अल्सरेटिव कोलाइटिस जो वर्ड था वो टोटली न्यू था, किसी ने भी नहीं सुना था, फैमिली में किसी को भी नहीं था। मम्मी को जब पता चला कि इट्स क्रॉनिक इलनेस, तो वो तो शी स्टार्टेड क्राइंग। और उन्हें देख के पहले मैं नॉर्मल थी, पर उन्हें इस तरह से इमोशनल देख के मुझे भी रियलाइज हुआ दैट इट इज अ बिग थिंग, क्रॉनिक इलनेस है। मेरी नॉर्मल लाइफ से मुझे पूरी लाइफ में मेडिसिन लेनी होगी। सो या, तो फिर मैं भी रोने लग गई। और पहले एक बार ये था कि कोलोनोस्कोपी के रिजल्ट्स आए नहीं थे, डॉक्टर ने सिर्फ ये बताया था कि इट कुड बी ईदर अल्सरेटिव कोलाइटिस और नॉर्मली एन इन्फेक्शन। बायोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी थी, बट मुझे अभी तक क्लियर नहीं था। मैं ये सोची थी कि ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन घर पर जब दीदी बोलते कि रिजल्ट्स क्लियर है अल्सरेटिव कोलाइटिस से, तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन ये था, जैसे मूवीज में होता है, मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैंने कुशन्स वगैरह सब कुछ फेंकने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि प्लीज जस्ट से इट्स अ नाइटमेयर, कि एक बुरा सपना है, नेक्स्ट डे वापस से सब ठीक होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी लाइफ अब मुझे मेडिसिन लेना होगा, जहाँ पे मैं एकदम हेल्दी रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं एकदम फिट एंड फाइन रहूं, वहां पे अब इतने सारे रेस्ट्रिक्शन, मैं बाहर घूमने नहीं जा सकती, फ्रेंड्स के साथ चिल नहीं कर सकती, मुझे इसी तरह से घर पे बंद रहना पड़ेगा। तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल था। एंड आपने अपने फ्रेंड्स को बताया? डिड दे अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, एंड व्हाट वाज योर फ्रेंड्स रिएक्शन? स्टार्टिंग में तो जैसे कि मेरा 10th हो चुका था, 11th 12th में मैं वो स्कूल छोड़ रही थी। फ्रेंड्स का उस टाइम बस यही था कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। उस टाइम मैंने किसी को भी क्लियर नहीं करा था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। आई जस्ट सेड कि इंडाइजेशन है। बाद में बताया तो बाद में इतने कुछ फ्रेंड्स रहे भी नहीं थे, क्योंकि जब वो स्कूल छूट जाते तो फ्रेंड्स भी नहीं रहते। एक दो फ्रेंड्स को बताया तो ठीक था उनका नॉर्मल रिएक्शन कि हाँ हो जाता है। उन लोगों का भी कहना था कि यार तू तो इतना ध्यान रखती थी, बाहर का भी इतना सब नहीं खाती थी, और अपने एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, फिर कैसे होगा? तो बताया मैंने भी दैट्स इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो फर्क नहीं पड़ता, बाहर का खाओ, एक्सरसाइज करो, इट्स योर इम्यून सिस्टम जो आपकी खुद की बॉडी पे अटैक करता है। ओके, एंड आपने कहा कि आपको प्री बोर्ड्स के टाइम पे हुआ था, तो या हाउ डू यू मैनेज योर एग्जाम्स एंड बोर्ड्स में? मतलब कैसे वो मैनेज किया फिर आपने? बोर्ड्स के टाइम में उस टाइम कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई थी दवाई की वजह से मैं खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था कम स्पाइसी खाना है, तो मैंने वो स्पाइसेस वगैरह कम लेना शुरू कर दिया था। और मेन जो मेरा जो ट्रिगर था वो यही था कि बोर्ड्स की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। लाइक कंटिन्यूअसली स्नेकिंग, अटम सटम चीजें खाना, एंड देन नाइट, रात रात भर तक जग के पढ़ाई करना, अच्छे से प्रॉपर नींद ना लेना, उस वजह से। Okay. So, just to summarize everyone, for those who could not understand or may not have understood or may have skipped some portion, Nivedita experienced early symptoms of ulcerative colitis when she was almost, about to give her 10th boards. And despite living in, I think Udaipur is not a small city, but despite living in a place like that, it took her at least a period of 1 year to get diagnosed, which tells you that
there's still a lot of, lack of public awareness and awareness amongst physicians also that, this could be IBD, ulcerative colitis, or Crohn's disease, and then they don't consider it as a possibility. And maybe because of our young age also that might have been possible, but this is a area which we need to work on. And not only the public, we have to educate the healthcare practitioners also that this is a possibility. Ulcerative colitis or Crohn's disease can happen to young people, and it is increasing in India. Okay, and you heard from her how the initial reaction was, and she was not able to, she was hoping that the diagnosis would be a nightmare and that everything would be okay from the other day. But uh, I think all of us have go through that initial period of shock. And I think all of us can definitely relate to what Nivedita felt. Nivedita, what was your initial treatment, and how did your disease come under control, and what, apart from the medications, what else did you start doing to ensure that your disease activity comes down and you are able to continue your studies and not fall behind your other classmates? तो लाइक 10th के बाद मेरा, क्योंकि लाइक मुझे BLL भी करना था, मेरा था कि मैं क्लैट का प्रिपेयर करूंगी, उसके लिए मैं कोचिंग के लिए जोधपुर जाना चाहती थी। बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मम्मा पापा ने नहीं भेजा, और पापा ने डिसाइड करा कि ओपन बोर्ड से कर लेते, मेरा हेल्थ का भी हो जाएगा और अगर मैं कोचिंग भी बाहर भी जाती हूँ तो वो भी मैनेज हो जाएगा। फिर लाइक जब सितंबर 2023 में पता चलता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो सबसे पहले एलोपैथी का मेडिसिन स्टार्ट किया। उस टाइम डॉक्टर ने मुझे जो नॉर्मल मीज़लामाइन होता है एंड दैट प्रोबायोटिक्स एंड ऑल दिए थे। उससे लाइक मेरी कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लाइक विद इन 1 मंथ मेरे जो मोशंस, जो लूज मोशन हो नहीं रहे थे, मोशन सॉलिड हो गए थे एंड फ्रीक्वेंसी भी खत्म होके लाइक 2 नॉर्मल हो गई थी। तो उस टाइम मुझे फील होने लगा कि यार ठीक है, अब सब कुछ कंट्रोल में है एंड आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ। तो वापस से जैसे कि मैंने मिर्ची, उस टाइम भी स्पाइसेस वगैरह लेना बंद नहीं करा था, मैं सब कुछ खा रही थी। स्पाइसेस बस थोड़े से कम कर दिए थे, और उस टाइम क्योंकि हमें किसी को भी नहीं पता था कि लाइक ये कितना ज्यादा सीवियर हो सकता है, तो हमने किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। थोड़ी मिर्ची खा रही हूँ तो ठीक है, और अगर कभी ज्यादा भी खा लूं तो वो भी ठीक है। लेकिन अगेन फिर ये जो ज्यादा मिर्ची करके मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, और एक दिन मैंने बहुत ज्यादा स्पाइसेस खा लिए। लाइक हम लोग बाहर किसी फंक्शन में थे और वहां पे बहुत ज्यादा स्पाइसेस खा लिए। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई है। लाइक बिल्कुल भी वो कंट्रोल में नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सारी मेडिसिन दी। नेक्स्ट उनका ऑप्शन था कि वो स्टेरॉइड स्टार्ट करता है अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो। बट उस टाइम मैंने इतना कुछ रिसर्च वगैरह नहीं किया था, गूगल नहीं किया था कि स्टेरॉइड्स एंड ऑल क्या होते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में एग्जैक्टली क्या होता है उतना मुझे बस ये पता था कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर। तो पापा ने कहा कि आयुर्वेदिक में इसका लाइक पूरा इलाज है, ये लोग इसे रूट कोज से खत्म कर देते हैं। तो हम लोग वापस से पतंजलि पे गए और वहां पे उन्होंने मुझे 7 डेज के लिए सिर्फ सूजी, लाइक नो स्पाइसेस एट ऑल, जस्ट सूजी का उपमा एंड दलिया उस पे रखा, और जो मैं रोटी सब्जी लेती थी वो सब बंद करवा दिए। उससे मेरी चीज और इम्प्रूव हुई। फिर उन्होंने मुझे उदयपुर के किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजा जो कि उनके सीनियर थे। उन्होंने वापस से मेरी मेडिसिन चेंज करी। उन्होंने मेरी जो एलोपैथी की जो मेज़ामाइन चल रही थी, वो मैं जो 2400 mg ले रही थी उसे सिर्फ 1200 mg करवा दिया। एंड उन्होंने उनका अपना पर्सनल जो आयुर्वेदिक कोर्स था, दैट ईसबगोल समथिंग, और उनकी खुद की मेडिसिन वो स्टार्ट करी। बट वो मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद मेरी सिचुएशन और भी वर्स्ट हो गई। लाइक जब तक मैं एलोपैथी ले रही थी तब तक मेरा वेट फिर भी 47-46 था। मैंने ये उदयपुर वाले आयुर्वेदिक मेडिसिन 5 मंथ्स के लिए ली, और उस ड्यूरेशन में मेरा वेट लाइक 33 kg आ गया विद इन 5 मंथ्स। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता था, लाइक स्टमक पेन, मैं बहुत वीक हो गई थी, मेरी सारी बोन्स विजिबल थी, और उस टाइम मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली थी। लाइक अगर उस टाइम अगर कोई भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली या नेबर्स देख लेते तो उन सबका रिएक्शन यही होता था
कि ये क्या हो गया है। और मुझे घर से बाहर निकलना भी डर लगता था, इवन मुझे वॉशरूम से दूर जाने में भी डर लगता था। मैं अपने रूम को छोड़ के जाती भी नहीं थी, मैं पूरे दिन अपने रूम में रहती थी। मेरे हाथ पाँव बहुत ज्यादा दर्द होते थे, मेरी रात रात भर मेरी मम्मा मेरे हाथ और पाँव दबाती थी, मुझे सुलाने की कोशिश करती थी। और खाना खाना भी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो खाना खाना भी बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लाइक वो थोड़ा बहुत दलिया खाती होंगी, 1-2 स्पून। फिर बाद में लास्ट में जब मई के एंड में बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा वॉमिट हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन, तो उस टाइम मुझे हॉस्पिटल एडमिट हुआ, जहाँ पे डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल ग्लूकोज की बॉटल वगैरह दी। और फिर वापस से मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर चेंज करा, और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए केरला आयुर्वेदा, बैंगलोर से। उनकी मेडिसिन लेने के बाद पहले जो मेरे मोशंस 12 रहते थे डे के, लाइक ये पूरे 5 मंथ्स मेरे मोशन 12 थे। तो वो जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट करी, 10-15 दिन में मेरे मोशंस 5 to 7 आ गए। और उन्होंने ही कहा, क्योंकि लाइक इतना ज्यादा टाइम हो गया और मैं मीज़लामाइन भी नहीं ले रही थी, सो एक बार मुझे वापस से कॉलोनोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। लास्ट टाइम जो मेरी कॉलोनोस्कोपी हुई थी वो सिर्फ हाफ कॉलोनोस्कोपी हुई थी, लाइक रेक्टम एंड लेफ्ट साइड तक। इस बार डॉक्टर ने फुल प्रिपरेशन के साथ करी थी और पूरी कॉलोन की करी थी। तो उसमें पता चला कि मेरे अल्सर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और मुझे पेनकोलाइटिस हो गया है। और फिर उस टाइम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने फाइनली मुझे स्टेरॉइड्स दिए, पाइसिलोन, जो कि मैंने 3 मंथ्स के लिए, एंड मीज़ामाइन स्टार्ट करी, जो कि मैं उस टाइम 1200 mg 3 टाइम्स ले रही थी। और भी बहुत सारे टोफा डोज वगैरह। तो 3 टाइम्स जैसे ही वो मैंने स्टेरॉइड्स लेने शुरू करे 3 मंथ्स के लिए, स्टेरॉइड से मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। अगेन इस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि बेसिकली स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। मैं बस ले रही थी और हमें लग रहा था, मुझे, मेरे पापा को, मेरी फैमिली वालों को, कि इट्स बिकॉज ऑफ मी, मेरा माइंड सेट, क्योंकि मैंने अब अपनी फूड्स इन सब पे बहुत कंट्रोल कर लिया है। मैं अच्छे से एक हेल्दी रूटीन वगैरह फॉलो करने लगी हूँ उस वजह से। क्योंकि उस टाइम तक जब ठीक होने लगा, मैंने बुक्स वगैरह रीड करी, तो समझ आया कि इट्स जस्ट ऑल योर माइंडसेट। अगर आप इट्स एक अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो करो, योगा करो, अपना लाइक डाइट कम लो, ओवर ईटिंग ना करो, स्नैकिंग ना करो, तो सब ठीक हो सकता है। तो मेरी जो स्पाइसेस की क्रेविंग रहती थी वो सब बंद हो चुकी थी। मैं अपने डाइट पे दे रही थी, डेली योगा कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। तो उस सब से मेरी कंडीशन इम्प्रूव हो गई। लेकिन वही, जैसे ये स्टेरॉइड्स बंद करे, तब रियलाइज हुआ कि ये मेरे योगा और रूटीन की वजह से नहीं, स्टेरॉइड्स की वजह से था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा और ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जब लगा कि यार ये स्टेरॉइड्स जैसी मेडिसिन मैं डेली नहीं ले सकती हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, और ना ही मुझे एलोपैथी ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू करनी है, मुझे वापस से नॉर्मल होना है। तो आई थॉट थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करते, मैंने वापस से इसके बारे में और बुक्स पढ़ी, गूगल पे सर्च वगैरह किया, इसका रीजन क्या होता है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है। और बस उन्हीं सबको, उसी रूटीन को एंड लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी भी मेरे स्टेरॉइड्स बंद हो चुके थे, लाइक वो 3 महीने के बाद स्टेरॉइड्स बंद हो चुके हैं। मैं मीज़ामाइन कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी केरला आयुर्वेदा से स्विच करके हमने प्लेनेट आयुर्वेदा स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो मतलब ये जो लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें समटाइम्स यू डिड नॉट टेक मेडिकेशन, समटाइम्स यू टुक मेडिकेशन, डाइट में उतने चेंजेस नहीं हुए, ऑब्वियसली स्पाइसेस इज आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ द लोकल कुजीन, है ना, आपका जो स्टेपल कुजीन है। बट थ्रू आउट ऑल दिस जर्नी जो आप डॉक्टर से मिले, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इस बीमारी में आपको दवा कॉन्टिन्यूसली लेनी होती है एंड दैट यू हैव टू मेक दिस डाइटरी चेंजेस? तो वो काउंसलिंग क्या आपको और आपकी फैमिली को मिली थी डॉक्टर से, मतलब प्रॉपर काउंसलिंग, नॉट जस्ट वन लाइन एडवाइस? कुछ ऐसा प्रॉपर समझाया था डॉक्टर्स ने कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है? डिड यू गेट एनी सच एडवाइस फ्रॉम एनी डॉक्टर? मेरा जो फर्स्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर था, लाइक उन्हें तो डाइट का कोई नॉलेज नहीं था। मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि यूसी में सबसे इम्पोर्टेंट डाइट एंड ऑल होता है। अगर आप डाइट, रूटीन और लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बता सकते हो, तो आपको यूसी के पेशेंट्स को ट्रीट भी नहीं करना चाहिए थी। तो वो 5 मंथ्स आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक थी।
देन उसके बाद एलोपैथी के डॉक्टर्स का ये रहता है कि जस्ट ऑयली फूड मत खाओ, स्पाइसेस कम कर दो, बाकी आप सब खा सकते हो। तो उन लोगों ने भी कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दी। उस टाइम जो मुझे सबसे ज्यादा डाइट में हेल्प करा था वो केरला आयुर्वेदा ने करा। उन्होंने मुझे एक न्यूट्रिशियस डाइट बताई, लाइक जो हेल्पफुल हो, जो हीलिंग में हेल्प करे, इजी हो डाइजेशन में। और उन्होंने ही मुझे फूड ऑप्शंस भी बताए कि मैं और क्या क्या खा सकती हूँ, क्योंकि वो मोस्टली साउथ के थे। तो उन्होंने जैसे कि मुझे जवार, सूजी की इडली, मूंग दाल के चीले, डोसा वगैरह जो भी बना के खा सकती हूँ। तो जब मेरी डाइट इम्प्रूव होने लगी तो मुझे समझ आया कि हाँ, मैं भले ही स्पाइसेस नहीं खा सकती, पर फिर भी मैं जो नॉर्मल टेस्टी एंड हेल्दी फूड होता है वो मैं खा सकती हूँ। और मेन थिंग ये थी कि लाइक जैसे कि मैं स्टेरॉइड्स भी ले रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड खाने लगी, तो उससे उन दोनों चीजों के मेरे से मिलके मेरा वेट गेन भी हुआ। पहले जो लोग करते कि बिल्कुल ब्लैंड डाइट लेना कि यूसी है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कुछ भी मत खाओ, आई थिंक वो टोटली रॉन्ग है। आपको थोड़े तो न्यूट्रिशंस चाहिए कि आपकी बॉडी वर्क करने लगे। तो हम्म, डॉक्टर्स का भी अलग ही होता है। एलोपैथी के डॉक्टर्स कहेंगे कि आप सब कुछ खाओ, कुछ कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक डाइट बताते हैं, और मुझे केरला आयुर्वेदा वाले डॉक्टर ने बताई और वो मेरे लिए हेल्पफुल थी। okay. Okay, so again, just to summarize what we discussed, Nivedita started as like all of us with mesalamine and basic medications, but she did not get a lot of good counseling on, that she should not reduce the medication dosage, what kind of food she should eat. So that counseling was not given to her by the doctors, because of which she had irregular, she had breaks in medication, and she was consuming chilies, which are a part of the, local cuisine, which kind of eventually, led to hospitalization. And then she also went to a couple of alternative medicine practitioners, and then she had bad experience with one, a good experience with other. So that also tells you a lot about, what we have experienced. And a lot of people think that alternative medicine is the solution, but you never know, like, what they can make a condition worse as well. And you have to go to qualified people and people who actually understand the disease. So don't just blindly follow what is, being said by people who don't really understand the condition. And yeah, so after getting some good counseling from alternative medicine practitioners and a combination of medicine from uh, the allopathic medicines, the mesalamine, she's right now in a decent position. So I think this is similar to what we have all experienced. And again, it tells us that not much has changed in terms of what people are going through when they get diagnosed, and the lack of information that they have to face, and the lack of counseling, especially on how do you actually live with this disease, and how much diet is a big part of it. And that is not available even with, the hospitals and modern medicine practitioners. And even with, if you go to alternative medicine practitioners, they may not always give you the best advice, and you can basically end up worsening your disease. So always remember that whenever you try something new, don't stop your main medication. That will always be harmful for you. So, Nivedita, uh, finally you found, figured out कि आपके लिए क्या काम करता है. So now tell us, why did you start your YouTube channel and started talking about ulcerative colitis? लाइक आई सेड कि सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम होती थी वो खाने में प्रॉब्लम होती थी। मुझे जो स्टार्टिंग वाले डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया था कि मुझे डाइट में क्या खाना है। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि मुझे किस तरह की सब्जी खानी चाहिए थी। उनके अकॉर्डिंग मेरे डाइट में फुल रेस्ट्रिक्शन था, तो मैं सबसे ज्यादा डाइट से ही परेशान होती थी कि क्या खाऊं जो मेरी बॉडी को सूट हो और मुझे हेल्प करे। उसके बाद लाइक जब मैं अपने घर वालों को देखती थी या फिर अपने फ्रेंड्स को कि वो लोग डेली इतनी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे, लाइक घर की जो नॉर्मल जो दाल, नॉर्मल जो वैरायटी होती है सब्जी में, मैं वो भी नहीं खा सकती।
नॉर्मल जो इंडियन कुजीन जो कि हम लोग यहाँ खाते हैं राजस्थान में, लाइक दाल ढोकली, इडली सांभर वगैरह वगैरह, वो सब भी आप लोग नहीं खा सकते हो। तो यार मुझे लगा आई नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव्स कि जो मेरी बॉडी को सूट हो, मेरे लिए हेल्दी हो और मुझे हीलिंग में भी हेल्प करे। फिर मुझे केरला आयुर्वेदा की से धीरे धीरे हेल्प मिलने लगी। उन्होंने जब मुझे डाइट बताई तो मैं उनसे पूछती थी मुझे क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। वो कहते थे दैट यू कैन ट्राई। तो फाइनली मैंने अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और क्योंकि एलोपैथी चल रही थी तो उस टाइम इतना ज्यादा इफेक्ट लगता नहीं था कि कोई चीज मेरी बॉडी को इतना हार्म कर रही है। फिर जब भी लाइक यूट्यूब पे, इंस्टा पे फूड की रील्स देखती थी, तो उस टाइम जो भी रेसिपीज वगैरह आती थी, लगता था यार इसकी जगह लाइक इंस्टेड ऑफ बेसन आई कैन यूज मूंग दाल फ्लोर। लाइक इफ दे आर मेकिंग उत्पम तो आई कैन स्किप द स्पाइसेस एंड द चिली एंड मेक माय ओन उत्तपम विदाउट एनी स्पाइसेस एंड चिली। तो इस तरह से मैंने अपने लिए बनाना शुरू किया एंड फाइनली आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई एम ईटिंग। तो इट वाज लाइक दिवाली थी और मैं अपने भैया से बात कर रही थी एंड मैंने उन्हें बताया कि भैया देखो मैं इस तरह से अपने लिए डिशेस एंड ऑल प्रिपेयर करती हूँ। तो ही सेड कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ इस तरह से कि एक यूट्यूब पे शॉर्ट डालना, लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे एज अ पर्सन लिविंग विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने सोचा कि हाँ, जिस तरह से मुझे प्रॉब्लम हुई है उस तरह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कि क्या खाना चाहिए। बट अगर उन्हें स्टार्टिंग्स में मिल जाए कि उनके लिए राइट डाइट क्या है तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे से शुरू किया, जिसमें मैंने 30 डेज तक सिर्फ ये रील्स डाली है कि व्हाट आई एम ईटिंग इन अ डे। और फिर धीरे धीरे जब कमेंट्स आने लगे लोगों के आए कि क्या खाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन राइट है, इसकी रेसिपीज, उस चीज की रेसिपीज, तो फिर धीरे धीरे मैंने वो सब भी पोस्ट करना शुरू किया। ओके, एंड आपको जैसे लोगों ने दे स्टार्टेड कमेंटिंग, तो व्हाट इनसाइट्स डिड यू गेट फ्रॉम द, आपको उससे क्या समझ में आया? लाइक डिड यू एक्सपेक्ट कि इतने सारे लोग आपको मैसेज करेंगे, या फिर मतलब रीडिंग गोइंग थ्रू ऑल दोस कमेंट्स, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइक कि बाकी लोग क्या फेस कर रहे हैं, एंड उससे कुछ आपको आइडियाज आए कि मेरे को शायद ऐसा भी करना चाहिए, इस तरीके के कुछ इंसाइट्स आए आपको? उससे लाइक मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे माइंड में ये था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के वीडियोस बनाते हैं, बट जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो लोग खुद पेशेंट्स नहीं होते, वो लोग डॉक्टर्स होते हैं और वो लोग बेसिक गाइड देते हैं, लाइक आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है, एटसेट्रा। बट मेरा लाइक अलग था। मेरा अभी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस लाइक है, आई एम स्टिल नॉट इन रिमिशन, लाइक फ्लेयरअप्स वगैरह होता है। तो एक उसकी लाइफ स्टाइल की अगर फिर भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, दैट यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, यू कैन ईट नॉर्मल फूड। तो ये था कि हाँ, मतलब जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा वो मेरे ये सब व्हाट आई एट इन अ डे को देख के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। फिर उसके बाद जो मुझसे मैसेजेस आते थे वो मोस्टली ये आते थे, थैंक यू फॉर शेयरिंग रेसिपीज, योर रेसिपीज आर रियली हेल्पफुल। और कि आपकी रेसिपीज को देख के, आपकी वीडियोस को देखकर ही मैं डेली अपना डाइट प्लान करता हूँ और उनसे कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दिस ऑल। तो वो सब कुछ मेरे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था और ये क्लियर था कि लोगों को डाइट की हेल्प नहीं मिलती है, इसके साथ साथ वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि विच इज द राइट मेडिसिन जो स्टार्टिंग में डायग्नोसिस होता है और डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये सब। So basically, you had three main motivations. One is like कि there is a lack of patient, जो information patients से नहीं आती. It's mostly हम्म। doctors talking about कि ये guidelines हैं, लेकिन एक actual patient अपनी जिंदगी में क्या करता है यूसी से या क्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए, वो मिसिंग है एक. दूसरा, डाइट एडवाइस वी ऑल नो, एक तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड वही उतना काउंसलिंग मिलता नहीं है ना. एंड तीसरा, आप जैसे कि आप कह रहे हैं, पीपल वांट टू नो अबाउट मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग.
from what I'm understanding, your brother encouraged कि आप उसको डालो, है ना? तो a lot of us have this concern कि एक तो स्टिग्मा है इस डिजीज का, राइट? लोग आपस में बात नहीं करते, परिवार में नहीं बताते। तो हाउ हैज इट बीन इन योर फैमिली? क्या आपकी फैमिली में सबको पता है, रिश्तेदारों को, या सिर्फ आपके मम्मी पापा को पता है? क्या वो आपको बोलते हैं कि दोस्तों को मत बताओ? एंड यू एज अ न्यू जनरेशन, आप इस चीज को कैसे देखते हो? डू यू थिंक कि you should hide it, या this will affect your life in a social way? जैसे आप कॉलेज जाओगे तो do you have those concerns कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो will they treat me differently, and मैं इसके साथ फ्रेंड्स कैसे बनाऊंगी? ऐसा कुछ कंसर्न है? लाइक स्टार्टिंग में जब मुझे यूसी हुआ था, तो जब रिलेटिव्स पूछते थे, लाइक जैसे कि बुआ एंड ऑल हो गई, मौसी हो गए, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि क्यों सबको बता रहे हो, मैं हो जाऊंगी ना ठीक, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई डिजीज नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। और उस टाइम में एक तरह से पूरी तरह से घर पे आइसोलेटेड भी थी, मैं कहीं पे बाहर नहीं जाती थी। और जब कोई पूछता था तो मम्मा पापा इज फाइन, वो लोग तो बता देते थे क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे होता था कि मत बताओ सबको, क्योंकि मुझे वो जो सिंपैथी होती थी, मेनली मुझे वो नहीं चाहिए थी कि लोगों के माइंड में एक फ्रेम हो जाती है कि छोटी सी बच्ची, क्या हो गया, कैसे हो गया। वो सब जो फेसेस वगैरह होते थे, वो सब जो उनके एक्सक्लेमेशन रिएक्शन होते थे, मुझे उन सब से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता था। फिर उसके बाद जब फैमिली फंक्शंस वगैरह भी होते थे, तो मेरा यही रहता था कि मुझे नहीं जाना, मैं वहां पे कैसे मैनेज करूंगी, मुझे टाइमली वॉशरूम अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वहां सबके सामने लाइक सब लोग बाहर जाके वो सब खा रहे हैं और मैं अलग से घर पे खिचड़ी या दलिया बना के खा रही हूँ, तो मुझे वो सब भी नहीं चाहिए। बट उस टाइम भी इट वाज माय फादर जो मुझे फोर्स करते थे कि तू क्या, फिर अगर है तो ठीक है ना, कि तू क्या दिन भर घर पर ही बैठी रहेगी क्या, कहीं बाहर नहीं जाएगी क्या, बाहर तो जाना पड़ेगा, तुझे कॉलेज भी जाना पड़ेगा और मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अगर किसी फैमिली फंक्शन में गई हूँ तो उनकी जिद की वजह से गई हूँ। और फिर बाद में जब मेरी कंडीशन इंप्रूव होने लगी, मुझे लगा कि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करती हूँ, तो फिर पार्टीज वगैरह भी होती थी, तो मैं मोस्टली अपना खाना साथ में लेके जाती थी, टिफिन साथ में लेके जाती थी। फिर धीरे धीरे करके सबको भी पता चल गया था, लाइक किसी से भी ऐसा छुपा हुआ नहीं था, सबको पता था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और धीरे धीरे मेडिसिन, थोड़ा टाइम लगता है पर धीरे धीरे मेडिसिन लेने के साथ ठीक हो जाता है। तो बस अपना डाइट टिफिन साथ में लेके जाती थी, जहाँ पे वो लोग अपना खाते थे और मैं अपना खाती थी। और बाकी जो सोशलाइज होना एंड थोड़ा बहुत एंजॉय करना भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इतने टाइम तक घर पे रहना, फिर वो बाहर जाके बात करना, फ्रेंड्स के साथ खेलना करना, सब अच्छा था। फिर उसके बाद जो कॉलेज के फ्रेंड्स का, अभी तक मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अब मेरी थिंकिंग ऐसी बन गई है कि अगर मुझे नॉर्मली रहना है, तो मैं इसे एक डिजीज कह के या एक बड़ी चीज बना के वो नहीं रह सकती, मुझे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। लाइक ऐसा होता है जैसे कि इफ ऐसे पाइल्स कि लोगों को होती है एलर्जी, लोगों को चीजें सूट नहीं करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उस वजह से स्पाइसी अवॉइड करते हैं, ऑयली फूड, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड अवॉइड करते हैं। तो मेरा बस ये है कि अब, क्योंकि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है, तो लाइक छुपाने जैसा तो कुछ है नहीं, मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि हाँ है मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस। और आई कैन सिंपली से कि मुझे नहीं है चीजें पसंद, मैं नहीं खाती स्पाइसेस, मैं नहीं खाती ऑयली फूड, मैं घर का हेल्दी फ्रेशली कुक फूड खाती हूँ। बस दैट्स इट। पहले मुझे लगता था डर कि जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मुझसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, अर्जेंसी होगी, तो कैसा फील होगा। बट वैसी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हुई, और अभी मैं कंप्लीटली फाइन हूँ और कह सकती हूँ कि बस मुझे नहीं खाना, नहीं चीजें सूट होती, एंड आई एम टेकिंग मेडिसिन, इट्स फाइन। लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी को थायराइड भी होती है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, वो भी खाते हैं मेडिसिन, तो आई एम ऑल्सो टेकिंग मेडिसिन, इट्स फाइन। मेरा सबसे बड़ा ये है कि
at least because of that, I'm finally living a healthy life. I finally know what a healthy life actually is. एक हेल्दी रूटीन का फॉलो करना आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए मैं खुश हूँ और मैं यही चीजें सबको भी बताती हूँ that you should really do this. That is a wonderful attitude, Nivedita. I wish कि you know I think इतने साल में जब से मैं चला रहा हूँ, like I found very less people जो आपकी तरह who have self acceptance and जो इस चीज को इतना frankly and इतना, और they are not making a big deal out of it. And I think definitely your family is very supportive, it seems, and उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, I think. और आपके पापा, आपके भैया, I think they have done a very good job of not making it a bigger issue than it is. And yeah, I think you're very confident in the way कि कैसे आप मैनेज करोगे. एंड अगर कभी बाई चांस, होपफुली ना हो, बट इवन इफ तबीयत खराब हो एंड कुछ करे, तो आई होप यू विल मेंटेन द, एंड मतलब आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप मेंटेनिंग दिस एटीट्यूड. इट्स जस्ट अ डिजीज, सबको होता है, बहुत सारे लोग बीमारियों के साथ जी रहे हैं आजकल, तो हर कोई दवा खा रहा है, एवरीबडी इज टेकिंग सम पिल, एंड जस्ट कीप लिविंग विद दिस एटीट्यूड. Now just final couple of questions. So have you met other teenagers or other people of your age with this disease yet? Not face to face but through my YouTube channel shop. मेरे YouTube चैनल से बहुत सारे जने, लाइक मोस्टली आई वुड से जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, जो मेरे Instagram चैनल से भी मुझसे बात करते हैं, they were exactly of my age, like same like age, जिस एज में मुझे हुआ ड्यूरिंग माई 10th, सेम एज के पर्सन भी जिनसे मैं बात करती हूँ, और मुझसे छोटे भी बहुत सारे हैं जिन्हें 8th क्लास से 5 years की एज से ही हो रहा है. तो Oh. हाँ, सब लोग हैं और सबका सेम ही कंडीशन है जैसा मीठा है. तो डेफिनेटली फिर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, राइट? यू गाइस सपोर्ट ईच अदर. What Yeah. are your expectations from, I would say, the world, or जो आपसे बड़े हैं, जो सिस्टम्स हैं? कभी आप लोगों को लगता है कि किसी चीज की कमी है या कोई चीज होनी चाहिए थी, या बड़ों ने ऐसा करा होता तो ये शायद बेटर होता, जैसे एक डाइट काउंसलिंग वाली चीज डॉक्टर्स की साइड से, बट अदर देन दैट, आपको या ऑल द पीपल दैट यू टॉक टू, हाउ डू दे सी कि कि बाकी जगह जाएंगे तो कुछ दिक्कत होगी नहीं होगी? व्हाट डू यू विश फॉर, कुछ ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती विच वुड हैव मेड योर्स एंड देयर्स लाइफ इजियर, कोई ऐसी चीज है? लाइक सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे भी अपने 10th क्लास में हुआ था, और मेरे साथ जिन लोगों का भी मैंने बताया उन लोगों का भी मोस्टली 10th 11 का ही टाइमिंग था. तो आई थिंक एग्जाम्स के टाइम में प्रॉब्लम हुई थी. एक जो पर्सन है जिससे मैं बात करती हूँ, ही सेम माई एज, उसने अपने 10th बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे while he was in हॉस्पिटल. वो एम्स में था. ही वाज लाइक वो प्लेन खिचड़ी खाता था और वहां पे वो चुपके से एक बुक रख के पढ़ाई करता था. समहाउ उसने 10th के एग्जाम दिए, बट इसी प्रॉब्लम की वजह से वो 12th के एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि उस टाइम उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में था. तो उसे 1 साल ड्रॉप लेके वापस से 12th करना पड़ा. तो और ये मुझे भी फील होता था कि जब भी मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी, जैसे कि दूसरे पर्सन्स का तो होता है, जो भी डिसेबिलिटी वाले होते हैं, कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. मेरा ये रहता था कि व्हाट इफ मुझे वॉशरूम के लिए जाना पड़ गया, वहां पे जो भी एग्जामिनर होता था उसे लाइक बोलना भी, क्योंकि उस टाइम नहीं पता था कि उन्हें इसके कंडीशन के बारे में पता होगा या नहीं होगा, वो समझ भी पाएंगे. थैंकफुली ऐसी कभी कंडीशन नहीं हुई कि मुझे एग्जाम के बीच में जाना पड़े. लेकिन अगर इनकेस जाना पड़ता तो क्या होता, तो एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ, उन्हें मतलब जरूरत पड़ सकती है, वॉशरूम यूज करने के लिए जाना पड़ सकता है. तो एक वो होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, और थोड़ी सी फैसिलिटीज की आप लोग अपने टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग दे सको एग्जाम, समथिंग लाइक दैट. सही है. सो बेसिकली यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम, कि जब आप लोग बीमार हो
तो उसकी वजह से आप लोगों के एग्जाम्स में दिक्कत ना हो, and that does not hamper your future education or career, right? Good, good. And ठीक है। एंड एक और चीज, जैसे आपने बोला कि इतने सारे खाना खाना मतलब आपने अपना आप डिसाइड करा है, राइट? तो एक ये भी इशू होता है परिवारों में कि परिवार के कुछ लोग एक तरीके का खाना खाना चाहते हैं, जो जिसको आईबीडी है, दे नीड अ डिफरेंट डाइट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आपके घर में कैसे मैनेज होता है? मतलब आपका खाना वर्सेस फैमिली का खाना सब अलग अलग बनता है, आप खुद बनाते हो या कैसे मैनेज होता है? हाँ, तो मेरा खाना बिल्कुल ही अलग बनता है। मेरी रोटी सब्जी सुबह का शाम का खाना टोटली अलग बनता है। अब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कहा था कि मेरे सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे 2023 में, उस टाइम जब मेरी लाइक रोटी सब्जी अलग बनने लग गई थी, तो लाइक मेरी मम्मी के लिए बहुत ज्यादा काम हो गया था। लाइक पहले जो घर में सिर्फ 2 चीजें तैयार होती थी, अब उसकी जगह 10 डबल हो गई है, तो वो एक्स्ट्रा काम हो जाना, तो उसकी वजह से वो थोड़ी परेशान हो जाती थी। तो कभी-कभार ये भी हो जाता था कि ठीक है, सेम जो बन रहा है, उसी में छाछ डाल के ऐसे करके खा लेना। बट अब जब कंडीशन की सीरियसनेस समझ आई है, तो अब मेरा खाना टोटली अलग बनता है और उन्हें सबसे ज़्यादा समझ आता है कि मैं स्पाइसेस वगैरह ना खाऊँ, लाइक एक स्पून मिर्ची की एक स्पून भी मेरी सब्जी में ना आए। उसके सिवा लाइक जो मेरी दीदी है, वो उनका रहता है कि उन्हें बाहर से चीज़ें लाके खानी है, समोसे, मिर्ची बड़े खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, घर पे मैगी बना के खानी है। और जब वो खाते तो फिर उन्हें देख के मेरा भी खाने का मन करता है। बट उस टाइम पहले मुझे उन पे गुस्सा आता था कि आपको क्यों खाना है? थोड़ा हेल्दी नहीं खा सकते क्या? मेरे लिए थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? आप लोग मेरे लिए मिर्ची खाना नहीं छोड़ सकते हो क्या? आप लोग मेरे साथ खिचड़ी नहीं खा सकते हो क्या? उस टाइम ऐसा रहता था, लेकिन अब धीरे-धीरे मैच्योर हुई, जब मुझे खुद को मेरे इतने सारे फूड ऑप्शंस मिल गए, तो जब वो अपनी लाइक नूडल्स या मैगी बना रहे होते, तो मैं भी ठीक है घर पे वो चावल के आटे के नूडल वगैरह बना लेती हूँ। और जब भी वो घर पे पराठे बनाते हैं, तो मेरे अलग से पराठे बन जाते हैं। तो हाँ, अलग फूड हमेशा बनता है डिफरेंट। कभी-कभार मन होता है तो कह देती हूँ कि आज सब लोग मेरे साथ खिचड़ी खा लो, क्योंकि मुझे सबके साथ शेयर करके खाना है। और अब इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि अब मैं स्पेशली मेरा मन करता है कि मैं नहीं खा रही हूँ तो आप लोगों को मैं बना के खिलाऊं। इवन अब मैं बना के खिलाती हूँ तो उन सबको। मैं कोई इंस्टा पे नई रेसिपीज देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज मैंने ये रेसिपीज देखी और आज आप लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज है। Wow, that's very nice. I think kudos to you and your family as well for going through this journey together, and I think आप सबने मिलके as a unit इस disease से लड़ा है. So and again, like, although I think ये चीज आपको इतना as a kid you should not be so much concerned with it, but from a family perspective, इस disease का financial burden आप लोगों को feel होता था, and how did you guys manage all the testing and all? स्टार्टिंग में जब मुझे हुआ था और जब दवाइयों की कॉस्ट वगैरह लगी थी, मेडिसिन की कॉस्ट, उस टाइम मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया था कि मुझे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर इतना सिक्योर करना है कि लाइक मुझे कभी ये मेडिसिन वगैरह के लिए या हेल्दी फूड वगैरह के लिए कभी ज्यादा सोचना नहीं पड़े। अभी ऐसा होता है कि जो भी लाइक इतने फ्रूट्स वगैरह हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो मेरे लिए घर पे सारी चीजें आती थी। हर टाइप के फ्रूट्स, भले वो कितने भी ज्यादा कॉस्टली हो, कुछ भी हो। डेली कोकोनट वाटर, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मैं जो भी कहती थी कि मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मेरे लिए वो सब कुछ डेली घर पे आया है। कभी ऐसे मना नहीं हुआ। और फिर उसके लिए ये होता था कि लाइक वो मेरे लिए रिजर्व रहते थे कि ये मेरे लिए आया है, ये मैं ही खाऊंगी और कोई भी नहीं। और थैंकफुली कि पापा का इतना था कि वो जो भी कॉस्ट वगैरह थे उसका वो आराम से कर पाते थे। बट मुझे लगता था कि मुझे ये इतना सब मेडिसिन का कॉस्ट नहीं चाहिए, और था ज्यादा। जैसे कि मेरे बस्ती लगती थी वो 8 दिन
10 दिन की बस्ती लगती थी, तो मुझे वो बैंगलोर जाके करवाना पड़ता था और उसका टोटल कॉस्ट 50,000 होता था। वो मैंने 3 टाइम्स करवाया है। बट इसी के लिए मैं भगवान जी को सबसे ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि हमें कभी ये फाइनेंशियली कभी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, और that's उसके सिवा बस आयुर्वेदिक की मेडिसिन कॉस्टली लगती है, एलोपैथी की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। yeah, that's good. And फाइनल 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अब जैसे यू नो आप भी ऑब्वियसली अपने फ्यूचर के बारे में सोचते ही होगे, है ना? तो नाउ देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज योर बिगेस्ट कंसर्न एज यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर रिगार्डिंग दिस डिजीज? एंड डू यू इवन हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि मैं कहीं जाऊं, कॉलेज जाऊं या कुछ और परस्यू करूं, तो मुझे किस टाइप का सपोर्ट मिले? कोई ऐसा एंजाइटी है आपको किसी चीज से रिलेटेड, या कोई आप सोचते हो कि काश ऐसा होता तो बेटर होता फॉर योर फ्यूचर? मतलब आपने उसका तो बता दिया, टेंथ की एग्जाम थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बट फॉर योर फ्यूचर इज देयर समथिंग दैट कंसर्न्स यू एंड यू फील लाइक सपोर्ट इज नीडेड? एंड ऐसी कोई एंजाइटीज हैं जो आपके मन में रहते हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर? मेरे फ्यूचर का अगर मैं सोचूं तो अभी जो मैं अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करती हूँ वो ये कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ और आई एम परफेक्टली हेल्दी। तो ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इन केस अगर मैं एक बार के लिए मान लूं कि आई एम मुझे फ्यूचर में स्ट्रेस की वजह से फ्लेयर अप वगैरह एंड ऑल हो जाए, तो आई जस्ट वांट कि लोग कंडीशन को समझे और वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल हो। लाइक एक टोटल लीव होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लेयर अप में होते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं जा सकते बाहर, यू वांट प्रॉपर रेस्ट। तो इस चीज को भी लोग कंसिडर करके एक जो लीव काइंड होती है, प्रॉपर मेडिकल रेस्ट जो होता है वो मिलना चाहिए। और स्ट्रेस क्योंकि ज्यादा बड़ा ट्रिगर है, तो काम का अगर थोड़ा स्ट्रेस कम हो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, ओके, सो ठीक है। सो बेसिकली यू वांट कि लोग समझें जब भी आपको फ्लेयर हो, तो जहां भी आप हो, जो भी आपके अराउंड हो, वो समझे कि दैट यू नीड रेस्ट, एंड environment से आपको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना रहना पड़े अपार्ट फ्रॉम द एडेड स्ट्रेस ऑफ द डिजीज, राइट? या Yeah. Now, final question, and so you are a law student, right? So फ्यूचर में, ठीक है, अब हम बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि आईबीडी को हेल्थ पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज में हम ऐड कर सकें फ्यूचर में। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग इन दिस काइंड ऑफ वर्क? लाइक अब आपको एक्सपीरियंस है, आप लोगों को सुन रहे हो, फ्यूचर में कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपने लीगल स्किल्स के थ्रू आईबीडी को एक डिजीज ऑफ कंसर्न, और मतलब किसी पॉलिसी में इंक्लूड करा सको जिससे लोगों के लिए बेटर हो, तो वुड यू बी विलिंग टू डू दैट? वुड यू बी विलिंग टू डज दैट? मतलब क्या आपको वो इंटरेस्ट रहेगा उस टाइम तक, या फिर आप भूल जाओगे? नहीं, क्योंकि लाइक मेरा जो यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी जो पूरी लाइन थी, इवन लो से पूरा वो इसी तरफ पे फोकस हो चुकी है। लाइक मेरे जब मुझे यूट्यूब पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो आई फील रेस्पॉन्सिबल कि दे नीड माई हेल्प, मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना चाहिए। तो इवन इन द फ्यूचर अगर मैं कुछ चाहूंगी तो स्ट्रेस इज द बिगेस्ट ट्रिगर। और जब मैं वो 9 to 5 जॉब सुनती हूँ ना, वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है कि ओके। अगर मेरी 9 to 5 जॉब होती तो मैं जो रूटीन कहती हूँ फॉलो करने के लिए, वो फॉलो करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आप सुबह 9 बजे जाते हो, 5 बजे आते हो, मेरे अकॉर्डिंग खाना आपका 6 बजे जाना चाहिए। पर आप इतने टायर्ड हो के आप नहीं कर सकते, तो एट द एंड आपका खाना होता है 9 से 10 बजे, और आप 12 बजे तक सो रहे होंगे और सुबह वही सब chaos एंड ऑल। तो आई रियली वांट कि कैसे करके लाइक इंसान की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाए, वो जो 8 आवर्स जो होते हैं 9 to 5 वो 6 आवर्स हो जाए, और प्रोडक्टिवली या फिर घर पे बैठ के इजीली काम किया जा सके। लाइक
अभी जो रिमोट वर्क एंड ऑल होता है, एंड आपने जो लीगल या लॉ बनाने का मेंशन किया, वो भी एक तरह से होना ही चाहिए, बट इन सब चीजों पे बेस्ड, इंसान की मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना, डाइट पे, ये जो पैकेज फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, इन सब पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना, और इंसान को हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करना, जैसे कि कंपनीज वगैरह में भी आई थिंक इन सब की काउंसलिंग, हम्म, एक अलग से मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह ये सब होना चाहिए, हम्म, कि लोग सिर्फ प्रोटीन और मसल्स बनाने पे ही फोकस ना रहे, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब पे भी फोकस रहे, अपना जो डाइट का जो रूटीन है, प्रॉपर टाइमिंग, इन सब का भी ध्यान दे. Yeah, thank you, Nivedita. I think for your age, you have a lot of good insights, which is, I think, I'm not sure कि आपके generation में सबको ऐसा है, but I'm really like kind of proud to see someone, जो इस लेवल तक सोचते हैं. यू नो 9 to 5 तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं. देयर आपने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि ऐसे इश्यूज होंगे. तो या आई थिंक, आई होप कि जब तक आप आओ तब तक एटलीस्ट देयर इज सम अमाउंट ऑफ ग्रेटर लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड सम अमाउंट ऑफ सपोर्ट फॉर यंग पीपल लाइक यू, कि आप लोग एक फ्लेक्सिबल और हेल्दी लाइफ परस्यू कर सको. um, हमेशा शायद ना हो पाए, बट हाँ, जो भी कंडीशन हो उससे लड़ने के लिए एंड उससे उभरने के लिए होपफुली रिसोर्सेस हो. वी विल आल्सो ट्राई आवर बेस्ट, बट फ्यूचर में आप जैसे लोगों की भी नीड होगी टू काइंड ऑफ चेंज थिंग्स. And yeah, I hope ki, you continue your work and your work of raising awareness. You continue to be this confident and you continue to have this self belief. I think वो आपका सबसे बड़ा biggest weapon रहेगा. Flares तो I think आएंगे. There's very less chance कि नहीं आएंगे. But continue to have this self belief that you will get over it. Okay, continue to take your medications on time. Continue to live a healthy lifestyle, a lifestyle that suits you. And jo I think you have a very good support system from your family as well. So continue to lean on that. I think you'll have a very good future. And I hope that a lot of us can take that from Nivedita and learn that from Nivedita on how to not to make this issue bigger than what it is, and learn to live life with this self belief that yeah, I'll be okay, and take responsibility for our own health. I think she has done a very good job of that, and learning about the disease, about the dietary modifications, and then helping others as well. So I hope some of us will be inspired by that and do the same. So yeah, Nivedita, I think wonderful. Thank you so much for agreeing to speak with us. And yeah, we are all rooting for you. So have a very good college life, and we hope you stay healthy all the time. And if you ever need anything, just let us know and we'll do our best to support you. Thank Okay. you so much, and I'm really grateful to join you on this talk. Okay. So, okay. Then goodbye, everyone. And yeah, thank you for joining today. And in a week, the recording will be on YouTube and you can see it on Nivedita's channel also. All of you should subscribe to Nivedita's channel and IBD India also. And yeah, so yeah, good evening, everyone. Take care. Bye. Bye, guys.